جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال الله تعالى في مقام الآخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة وقال النبي في مقام الآخر المرء مع من أحبه صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اسٹیج پر رونق افروز علماء دین، محترم و موقر حضرات مہمانان کرام، بزرگوں اور میرے نوجوان دینی بھائیوں، مدرسہ فیض الاسلام کے سالانہ جلسے میں بڑی چستی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ آپ حضرات نے شرکت فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے آنے کو بے حد قبول فرمائے۔ بھئی مجمع کے بیچ میں جو حضرات بات کر رہے ہیں، 2-3 منٹ ہم خاموش ہو جاتے ہیں، وہ اپنی بات پہلے مکمل کر لیں۔ بہت سارے جوان مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں کہ وہ آپس میں چھینم چھان بھی ہو رہی ہے، کھانا پینا بھی ہو رہا ہے، آپس میں بات بھی ہو رہی ہے۔ اگر اتنا وقت آپ کو چاہیے تو مفتی راغب صاحب سے ہم درخواست کریں گے کہ وہ 5 منٹ 10 منٹ آپ کو بات کرنے کی دیں گے۔ آپ بات کر کے فارغ ہوں گے تب کوئی اسٹیج سے آپ کو بات کہے گا۔ یہ کر رہے ہیں بات بیٹھ کے، اور بالکل سامنے ہی بیٹھے ستارہ بن کے، یہ کہنے دیں گے کچھ ہیں؟ اگر اب کے بول گئے تو جگہ بدل دیں گے تمہاری، سمجھ گئے؟ اب بالکل چپ چاپ بیٹھو، خاموش ہو جاؤ سب۔ درود شریف پڑھیں سبھی حضرات ایک بار۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز بزرگوں اور میرے نوجوان دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا ہے، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے قسمیں کھا کر ارشاد فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ انسان کو میں نے کتنی اچھی صورت بنا کر کے پیدا کیا ہے، کتنی اچھی ترتیب سے بنایا ہے۔ اللہ نے میرا اور آپ کا جسم کتنا اچھا اور خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو کوئی جانور نہیں بنایا، جنگل میں پھاڑ کھانے والا جانور بھی اللہ چاہتے تو بنا دیتے، گلیوں میں گھومنے والا کوئی کتا ہمیں اللہ بناتے تو بنا دیتے۔ اللہ کی خدائی میں کوئی دخل اندازی کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کی
اللہ کے احکام میں اور اللہ کے مشوروں میں کوئی اپنا مشورہ گھسانے والا نہیں ہے. وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. وہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اس کائنات کے مالک نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا اور آخری نبی محمد رسول اللہ انہیں سب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان. احسان مان رہے ہو اللہ کا؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں انشاءاللہ. اگر یہ احسان ہے تو اپنی زبان کو خاموشی دو اور اپنے کانوں کو کھولو کہ کوئی کم عمر، کوئی طالب علم اپنے دل کا درد تم تک پہنچانے آیا ہے. کوئی کچھ کہنے کی جسارت کر رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. اس پرفتن دور میں آج میرا نوجوان، آج میرے بزرگ، آج میری مائیں بہنیں، آج میرے بچے اور بچیاں کس لین پر چڑھے ہوئے ہیں اور ہم کہاں جا رہے ہیں. آمنہ کے در یتیم نے ہمیں کیا عنایت کیا تھا اور ہمارے ہاتھوں میں کون سی دولت ہے جس کی ہم حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیش بہا نعمت مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے. اس کی حفاظت ضروری ہے. میرے بھائی، اللہ نے مجھے اور آپ کو صاحب ایمان بنایا. اس روح زمین پر ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے. سوالات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات نے اس زمین کے اوپر آ کر اسی محنت کو لے کر، ایمان کے پیغام کو لے کر، اسی اعلان کو لے کر، اسی پکار کو لے کر ساری دنیا میں چکر کاٹے ہیں، لوگوں کی خوشامدیں کی ہے کہ اللہ کو ایک ماننے والے بنو. اللہ نے مجھے اور آپ کو بن مانگے صاحب ایمان بنایا ہے. تم میں سے کوئی ایمان کو لینے گیا تھا؟ اسلام کے اندر داخلے کی خواہش کسی نے کی تھی؟ قرآن کو مانگنے گیا تھا؟ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں مسلمانی گھر میں پیدا کیا، مسلمان ماں عطا فرمائی، مسلمان باپ عطا فرمایا، مسلمان بھائی عطا فرمائے. جب ہماری پیدائش ہوئی تو ابھی ہمارا بچپنا ہے، ابھی 24 گھنٹے بھی ہماری ولادت کے نہیں گزرے تھے کہ اللہ نے ماں باپ کے ذہن میں ایک آواز ڈالی ہے، ایک پیغام ڈال دیا ہے کہ اس معصوم کے کانوں میں سب سے پہلے جانے والی آواز وہ اللہ اکبر کی ہو. مسجدوں میں جاتے ہیں، مدرسوں میں جاتے ہیں، کسی حافظ کو بلا کر لایا گیا، کسی عالم کو بلا کر لایا گیا، کسی مؤذن کو بلایا گیا اور کہا گیا ہمارے یہاں بچی پیدا ہوئی ہے، ہمارے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، میرا پوتا پیدا ہوا ہے. اس کے کان میں ذرا کہو تو صحیح اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس بچپنے کی حالت میں جب ہمیں کھانے کا شعور نہیں تھا، ہمیں پینے کا شعور نہیں تھا، ہمیں زندگی کا طرز عمل ابھی یاد نہیں تھا، ابھی ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہم دنیا میں کہاں آ گئے ہیں، اسی وقت میں اللہ رب الجلال نے میرے اور آپ کے کانوں میں اپنے نام کو کہلوا دیا ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. مسلمانوں، ہم ایمان والے ہیں، ہم اسلام والے ہیں، ہم قرآن والے ہیں. اللہ نے میری اور آپ کی بقا پر دنیا کی بقا رکھی ہے. جب اس دنیا کی زمین میں کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوگا، قرآن کا چاہنے والا نہیں ہوگا، نبی کا نام لینے والا نہیں ہوگا، آخرت پر ایمان رکھنے والا نہیں ہوگا، اللہ کی توحید کا پیغام اپنے دل میں لینے والا نہیں ہوگا، کسی کی زبان پر اللہ نہیں ہوگا، اس دنیا کے نظام کو ختم کر دیا جائے گا، یہ اجاڑ دیا جائے گا، یہ برباد کر دیا جائے گا. یہ سورج، یہ چاند، یہ آسمان، یہ ستارے سیارے، یہ چوڑی چکلی زمین جو پانی پر بچھی ہوئی ہے، یہ ریزہ ریزہ ہو کر کے برباد ہو جائے گی. یہ دنیا اجڑ جائے گی. تیری میری بقا میں دنیا کی بقا ہے، ایمان والے کی بقا ہے تو دنیا کی بقا ہے. اگر یہ ایمان والے کا زوال ہے تو پھر دنیا کا بھی زوال آ جائے گا. یہ میری اور آپ کی قیمت ہے. اللہ کے حبیب کی امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، مجھے اور آپ کو اس لاڈلی امت میں پیدا کر دیا ہے. میرے بھائی، میرے بھائیوں، میں اور آپ اس لاڈلے نبی کی امت میں ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے دور میں پیدا فرمایا کہ جب انسان بظاہر انسان نظر آ رہے تھے لیکن ان میں
इंसानियत बाकी न रही थी, हैवानियत उनमें आ गई थी। यहां तक के वो इतनी दरिंदगी पर उतर गए थे कि अपने घरों में बच्चियों को पैदा होने को ऐब समझा जा रहा था। अपनी बच्चियों को पैदा होते ही अपने हाथों से उठाकर, अपने हाथों से गड्ढा खोदकर जमीन में दफन करने पर मजबूर थे। ये ऐसी नालायक कौम थी। आमना का दुर्र यतीम हया जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इस दुनिया में भेजा। चारों तरफ अंधेरा है, चारों तरफ बदमाशियां हैं, चारों तरफ लट्टू लुटेरे खड़े हैं, रहजनी हो रही है, एक दूसरे की इज्जत से खेला जा रहा है। ऐसे वक्त में आमना के दुर्र यतीम आ रहे हैं और दुनिया में आकर आपने वो इनकलाब पैदा किया है। वो कौन सी चीज थी, वो कौन सी नीमत थी जिस पैगाम के तहत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र में नबूवत हासिल करके ये कुरान का मौजिज़ा जो आप पर नाजिल फरमाया गया, वो कुरान के जो आज तक मेरी और आपकी हालत को बदलने में लगा रहा, हमें भटके हुओं को रास्ता दिखाने में लगा रहा और क़यामत तक कुरानी तर्ज पर जिंदगी गुजारने वाले ही कामयाब रहेंगे। वो कुरान अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब पर नाजिल फरमाया। वो कुरान कोई मामूली नहीं, उन्हीं कुरान के सदक़े में, उसी कुरान की निस्बत, उसी कुरान के सदक़े तुफैल मैं और आप यहाँ बैठे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ये कुरान की दौलत मुझे और आपको दी है, अल्लाह के हबीब पर नाजिल फरमाया है। लोगों इसकी कदर करो। अल्लाह तबारक व तआला ने आमना के हबीब को, अपने हबीब को, आमना के लाल को, उस दुर्र यतीम को जब दुनिया में भेजा तो फरमाया कि आज मैंने लोगों पर एहसान कर दिया, ईमान वालों पर एहसान कर दिया कि अपने महबूब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को दुनिया में भेज दिया। उसी नबी के हम उम्मती हैं जिसने 23 साल बराबर मेरे और आपके लिए रो रो करके दुआएं की हैं, अपनी आंखों से आंसू बहाए हैं, 7 दिन 7 रात के बराबर अभी सजदा करने को उम्मत को सुनाया है, 3-3 दिन बराबर हुजरे में कैद होकर मेरे और आपके लिए रोने वाला, मुज़दलिफ़े के मैदान पर मेरे लिए और आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ करने वाला, अराफात के मैदान में तिलमिलाती सूरज में और उस गर्मी के मौसम में आप अराफात में खड़े होकर भी मेरे और आपके लिए रो रहे हैं। लेकिन आज मैं और आप हैं, आज मैं और आप हैं, नाम कहीं अब्दुल रहीम है, कहाँ नाम कहीं मोहम्मद खलील है, तर्ज भूल चुके हैं। हमने अपना अंदाज मगरिबी तहजीब पर लाकर खड़ा कर दिया है और आज का नौजवान कहता है नया जमाना है, नया दौर है, नया चलन है, नया फैशन है, सुन्नत का तरीका छूट कर एक नए तरीके पर जिंदगी गुजार रहे हैं और कहते हैं कि ये तरक्की का दौर है। मेरे भाई ये तरक्की का दौर नहीं है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका मुझे और आपको दिया था, जो 1450 साल पहले नक्शा था, उसी नक्शे में तरक्की है। मुसलमानों आज सारी दुनिया का कुफ्र मुझे और आपको बर्बाद करने के मशवरे कर रहा है, मुझे और आपको उजाड़ने के मशवरे कर रहा है और मेरा नौजवान गफलत की जिंदगी गुजार रहा है, आंखों पर पर्दा पड़ा है, अभी न रात का पता है, न दिन का पता है, न खाने का पता है, न पीने का पता है, बस जानवरों की तरह से हमने सर ऊपर उठाया है, न पीछे मुड़ के देख रहे हैं, न आने वाले वक्त को देख रहे हैं, न इन बच्चों पर तरस खाया जा रहा है जो अभी मासूम हैं, जिनकी बागडोरे हमारे कब्जे कुदरत में है, जिनकी बाजू की ताकत इस्लाम के लिए खर्च होनी चाहिए थी, कुरान के लिए सर्फ होनी चाहिए थी। आज वो दुनियावी हिवस में फंसकर अपने बाजुओं की ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको वहां खर्च कर रहे हैं। मुसलमानों आंखों को खोलने का वक्त है, बसीरत की आंखों को खोलने का वक्त है, अपनी बसारत की आंखों से देखने का वक्त है। देखो तो सही तुम हम कहां खड़े हैं, अल्लाह के हबीब ने हमारे लिए क्या नहीं किया। 23 साल के जमाने में एक भी रात आपकी ऐसी नहीं है जिस रात में मेरे और आपके लिए आंसू बहाकर अल्लाह से माफी न मांगी हो। आज उस नबी के लिए हमसे इतना भी नहीं हो रहा कि उस जैसा चेहरा बना लें, उस नबी के लिए हमसे इतना भी नहीं हो रहा कि उसके दस्तरखान के मुताबिक अपना दस्तरखान सजा लें। आज हमसे इतना भी नहीं हो रहा कि हम अपनी बच्चियों के निकाह सुन्नत नबवी पर कर लें, हम अपने बेटों के निकाह सुन्नत नबवी पर कर लें। खुराफात में फंसे पड़े हैं और जो गरीब अपने मेहमानों को नीचे बिठाकर खाना खिला रहा है, आज उसको तंज किया जाता है, ताना दिया जाता है, तू कौन सी जिंदगी जी रहा है,
अब तो तरक्की का दौर है, अब तो जमीन पर बैठकर कोई नहीं खाता। वो तो बहुत पुराने लोग थे तो जमीन पर बैठकर खाते थे, अब तो स्टैंडर्ड का वक्त चल रहा है, अब तो खड़े होकर चल रहा है, क्योंकि इंसान अब इंसानियत से निकलकर हैवानियत में आ रहा है। जानवर पहले भी खड़ा होकर के खाता था, आज भी खड़े होकर खा रहा है। इंसान अपने अंदर इंसानियत लिए हुए अल्लाह की जमीन पर दो जानू होकर तवाज़ो के साथ बैठता था, रब से डरता हुआ दस्तरखान पर हाथ चलाता था और सुन्नत के मुताबिक खा करके अल्लाह का शुक्र अदा करता था। और आज का नौजवान जानवरों की तरह, हमारी बिया शादियों के हाल देखो, अपने घरों के माहौल देखो, अपने घरों के पर्दे देखो, अपने घरों के तमाम चलन देखो, नौजवानों की रविश देखो, नौजवानों की चाल देखो और इनके शौक देखो, नए नए तरह के शौक हैं। मेरे भाई, ईमान बहुत बड़ी दौलत है, इसके कुछ तकाजे हैं जो आज हम नहीं समझ पा रहे। आज हम इसकी कदर और मंजिलत को भुला बैठे। खुदा की कसम, ये ईमान मुझे और आपको घर बैठे मिल गया। ये ईमान अगर हमें खरीदना पड़ता, हमें कुर्बानियां देनी पड़ती, तो हजरत अब्दुल्ला जुल्वजादीन का वाकया मुझे और आपको जगह देने के लिए काफी है। एक नाम आता है हजरत अब्दुल्ला, गैर मुस्लिमाना घराने में, गैर ईमान वाले घराने में, बेईमान लोगों में आपकी पैदाइश हो रही है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ईमान से नवाज दिया है, दिल में कलीमा आ गया है, अल्लाह के हबीब पर ईमान ले आए हैं। ये हजरत अब्दुल्ला, आप अपने ईमान को छुपाए रखते हैं, कुछ दिन गुजरते हैं कि एक न एक दिन ईमान खुलता है, अल्लाह के हबीब की खबर की पता चलता है कि आप वहां आ रहे हैं। ये अब्दुल्ला शौक में आपकी जियारत के लिए जा रहा है। हजरत अब्दुल्ला का ये ईमान का हाल अपने घर पर खुल गया। माँ ने भी देखा, चचा ने भी देखा, भाई ने भी सुना, बाप ने भी सुना। अब्दुल्ला अल्लाह के नबी पर ईमान ले आया, उसी मोहम्मद पर ईमान ले आया, उसी की मोहब्बत को दिल में बिठा लिया। चचा ने अब्दुल्ला को इतना मारा है, पकड़ करके इतना मारा कि मारते मारते, मार खाते खाते अब्दुल्ला बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा है। जवानों, ये ईमान मुझे और तुम्हें बगैर कुर्बानी के मिल गया है। अब्दुल्ला होश में आता है, खड़ा होता है, फिर पिटाई होती है, फिर बेहोश हो जाता है। 3 मर्तबा पिटाई करने के बाद फिर कहा गया, अब्दुल्ला, अगर ये अब्दुल्ला नाम भी भाट में आया, अगर तू मोहम्मद पर ईमान लाएगा, उसको नबी तस्लीम करेगा, तो तुझे हम घर से निकाल देंगे, तुझे हम अपना भाई नहीं कहेंगे, हम अपना बेटा नहीं कहेंगे, हम अपना तुझे कुछ भी नहीं मानेंगे, तुझे घर से निकाल देंगे। अब्दुल्ला की जबान में अल्लाह ने जुर्रत दी है, क्योंकि जब ईमान किसी के दिल में आ जाता है, वो अपनी जान का सौदा तो कर देता है, ईमान का सौदा नहीं करता। अगर ये वक्त अल्लाह न करे, आजमाइश का वक्त और ये इम्तिहान मेरे और आपके ऊपर आए, तो कहो इंशाअल्लाह कि अल्लाह हमें भी ऐसी जुर्रत दे देना, ऐसी तौफीक बख्श देना कि अगर जानो ईमान का मुकाबला होने लगे तो हम मोहब्बत के साथ अपनी जान की कुर्बानी दे देंगे, लेकिन ईमान का सौदा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा के कहें इंशाअल्लाह। ये ईमान आज ये नौजवान इस नीमत उज़्मा से गाफिल है। नौजवानों, मैं अपने भाइयों को जगाने आया, मैं अपने भाइयों को बताने आया। ये अब्दुल्ला जब होश में होता है और खड़ा हो जाता है, माँ कहती है कि बेटे पुराने ही दीन पर आ जा, ये तुझे मार मार के हलाक कर देंगे। अब्दुल्ला ने कहा, अम्मा जान, तुम्हारी मोहब्बत अपनी जगह है, तुम्हारी शफकत अपनी जगह है, लेकिन अब्दुल्ला जिस पर ईमान ले आ चुका है उसको नहीं छोड़ सकता। चचा ने कहा कि जाओ, या तो तुम घर से निकल जाओ या उस दीन को छोड़ दो। अब्दुल्ला मिनट से पहले फैसला कर देता है, घर को छोड़ना मंजूर है, ईमान का इनकार करना मंजूर नहीं है। आपको घर से निकलने से पहले आप अपने कपड़े उतार के, यानी घर वालों ने अब्दुल्ला के जिस्म पर से कपड़े उतार लिए हैं। बरहना चौखट से धक्का दे दिया गया कि जा निकल करके चला जा, या तो पुराने ही दीन में वापस आ जा या नए दीन में बरहना होकर दरवाजे और चौखट से बाहर निकाल दिया। माँ की ममता जोश में आई। माँ की ममता अलग चीज होती है। माँ की मोहब्बत अपने बच्चे के लिए बड़ी अजीब होती है। अपनी चादर उतार करके कहा कि अब्दुल्ला, अपने इस चादर से अपने जिस्म को छुपा लेना। अब्दुल्ला ने उस चादर के 2 टुकड़े किए, एक को
चादर पर बांधा, एक को ऊपर ओढ़ा, इस चादर के दो टुकड़े ओढ़कर, इसीलिए आपका लक़ब पड़ा है हजरत अब्दुल्ला ज़ुल्बजातीन। ये अब्दुल्ला इन चादर के दो टुकड़े लपेटकर नबी के दरबार में जा रहा है। अल्लाह का हबीब कहता है सारी दुनिया की कुर्बानी देकर अब्दुल्ला मेरे दरबार में आ रहा है, आप अपने साथ शरीक कर लेते हैं। तफसीली वाक़िया है लेकिन इशारा कर रहा हूं। आपने अब्दुल्ला को सीने से लगाया, मोहब्बत से बिठाया और आपने अपनी उसकी कुर्बानी को देखा, अपने साथ लगा लिया, गज़वात में शरीक रहे, सफर में शरीक रहे, अपने में शुमार कर लिया। हजरत अब्दुल्ला एक सफर में जा रहे हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी है, हजरत उमर बिन खत्ताब भी है, अल्लाह के हबीब भी जा रहे हैं। एक टोली आगे जा रही है, एक दरमियान में है और एक पीछे से आ रही है। सफर का यही अंदाज होता था। एक टोली में अब्दुल्ला भी था। इसकी तबीयत खराब होने लगी। अचानक खबर पहुंचाई गई इमामुल अंबिया को कि अब्दुल्ला की तबीयत खराब हो रही है और ऐसी तबीयत खराब हुई कि सफर की तकमील से पहले ही अब्दुल्ला जाँ बहक हो गया, उसको परवास हो गया। लेकिन किस सूरत में? जब आपको खबर दी गई, अल्लाह के हबीब वापस हो गए और अब्दुल्ला का सर अपनी गोद में रख लिया और कहा कि अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, आपके चेहरे पर अब्दुल्ला की नजर है। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए मेरे भाई, क्या कोई और हसरत है जिसको हम पूरी कहें? हज़रत अब्दुल्ला ने कहा, ईमान लाने के बाद इससे बड़ी हसरत और कौन सी हो सकती है कि मैं दुनिया से जा रहा हूं और मेरी आंखों के सामने आपका चेहरा मुबारक हो। इससे बड़ी क्या हसरत हो सकती है? आप दुनिया से रुखसत हो गए। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि अबू बकर खड़े हो जाओ, उमर बिन खत्ताब खड़े हो जाओ, लो ये मेरी चादर ले लो, मेरे अब्दुल्ला को इसमें कफन देना है। कुर्बान जाइए उस नबी पर जो उसकी कुर्बानी को पहचान कर अपनी नबूवत की चादर कफन के लिए उतार के दे रहा है कि अब्दुल्ला को कफन मेरी चादर में दिया जाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर बिन खत्ताब अपने साथियों को लेकर गुस्ल देते हैं और कफन नबी की चादर में दिया जाता है। जनाजे की नमाज का नंबर आता है, इमामुल अंबिया नमाज पढ़ाते हैं। जब कब्र में उतारने का नंबर आता है, उलमा बताते हैं, आप सुनते हैं, आप करते हैं। मुर्दे को जब कब्र में उतारने का नंबर आता है तो जो उसका करीबी रिश्तेदार होता है, उसकी सगी औलाद होती है, जिनको कब्र में उतारने का सलीका होता है, वो कब्र में उस अपने मुर्दे को उतारते हैं। अल्लाह के हबीब खुद कब्र मुबारक में उतरे हैं। आपने कहा, लाओ मेरे भाई को मेरे हवाले कर दो। आपने अब्दुल्ला को कब्र में रख के कहा, ए अल्लाह, तेरा नबी अब्दुल्ला से राजी है, तू भी इससे राजी हो जा। हजरत उमर बिन खत्ताब तड़प रहे हैं, काश कि इस अब्दुल्ला की जगह जनाजा मेरा होता, नबी दामन फैला देता कि मैं इससे खुश हूं, तू भी इससे खुश हो जा। मेरे भाई, ईमान लाने के बाद जिंदगी कितनी दुनियावी एतबार से उजड़ी है। घर से धक्के मारकर निकाल दिया गया है, बदन के कपड़े उतार लिए गए हैं। आज मेरा तेरा ईमान है जो घर बैठे मुझे और आपको मिला है। मेरे भाइयों, इस ईमान की कदर कर लो, इस ईमान की हिफाजत कर लो। नौजवानों, अपनी पुरानी रविश पर आ जाओ, इस नए चलन से वापस हट जाओ। 1450 साल पहले जो हमारा पुराना तरीका था, उसी में कामयाबी है, उसी दस्तरखान पे कामयाबी है, उसी पुराने तर्ज में कामयाबी है। इस नए दौर को नया दौर न समझो। ये ईमान को बर्बाद करने वाला दौर है, ये हमें उजाड़ने वाला दौर है, ये हमें हलाक को बर्बाद करने वाला दौर है। हमें सोचना होगा, हमें अपनी सोच में ये बिठाना होगा कि हम अल्लाह के नबी के दीवाने हैं, हम कुरान के मानने वाले हैं, हम इस्लाम वाले हैं। मेरे और आपके दिल में अल्लाह ने ये इस्लाम का पौधा लगाया है, इसको हरा भरा रखने की हमतन कोशिश करनी चाहिए और इसको हरा भरा रखने की कोशिश में हमें दिनों रात गुजारने चाहिए। रखेंगे इंशाअल्लाह। ये इस्लाम का पौधा, ये ईमान का पौधा मेरे और आपके जो दिल में है, हम अपनी नमाजों के जरिए, हम अपनी तिलावतों के जरिए, हम अपनी सदकात और खैरात के जरिए, हम यतीमों के सर पर हाथ रख के, हम बेवाओं के सरों पर चादर रख के, हम भूखों को खाना खिला के, हम प्यासों को पानी पिला के इस इस्लाम के शजर को हरा रखेंगे। इसके फल फूल में इजाफा होगा, इसकी पत्तियों में इजाफा होगा, ये हरा भरा रहेगा। जब इस्लाम का ये दरख्त हरा भरा रहेगा और इस हरे भरे होने की सूरत में हम दुनिया से जाएंगे, हमारी जबान पर कलीमा होगा, अल्लाह तबारक व तआला ईमान पर खात्मा करेगा, दुनियावी एतबार से भी कामयाबी होगी, आखिरत के एतबार से भी अल्लाह हमें फलाह महमूद से कामयाब कर देगा, जन्नत का मालिक बना देगा। आज मैं और आप
समझते हैं कि जन्नत बड़ी सस्ती है, बस मुसलमान के घर में पैदा हो गए, नाम मुसलमानी रख दिया गया, माँ भी मुसलमान है, बाप भी मुसलमान है, बस जिंदगी गुजर रही है, न नमाजों की परवाह है, न कुरान की तिलावत की परवाह है, न रोजों की परवाह है। आने वाला महीना रोजों का ही है। वो नौजवान मुसलमान ही तो होंगे जो सड़कों पर बीड़ियां भी पी रहे होंगे, जो सिगरेट का धुआं भी उड़ा रहे होंगे, जो गुटखा, दिलबाग, तंबाकू अपने मुंह में डालकर रोजों के महीने की तौहीन कर रहे होंगे। 60% लोग वो हैं जो रोजा नहीं रखते, 40% लोग वो हैं जो रोजा रखने वाले हैं, 80% लोग मुसलमानों में नमाज से दूर हैं, 20% लोग जो मस्जिदों में जा रहे हैं उन पर मदरसे वालों की भी मेहनत है, तबलीगियों की भी मेहनत है, मरकज वालों की भी मेहनत है, खानका वालों की भी मेहनत है, महल्ले वालों की भी मेहनत है। वो 20% भी मस्जिद में ले दे करके जा रहा है। और फिर ये मुसलमान कहता है अल्लाह की तरफ से मदद क्यों नहीं आ रही, अल्लाह की तरफ से मदद क्यों नहीं आ रही। खुदारा मैं हाथ जोड़ के कहता हूं अल्लाह के अगर हम हो जाएंगे अल्लाह की तरफ से मदद आएगी, और अगर अल्लाह के अहकाम से मुंह मोड़ लेंगे, नबी के तरीके के खिलाफ चलेंगे जैसा कि चल रहे हैं, तो फिर मदद नहीं आएगी, अल्लाह पिटवाएगा, अल्लाह हमारे ऊपर जबरदस्ती कानून लगवाएगा। और ऐसी ऐसी खबरें हमारे कानों में आएंगी जो तकलीफ देने वाली होंगी, जो मुसीबत में डालने वाली होंगी। आज मुसलमानों से कहा जाए कि अपने मालों को पाक कर लो, अपनी कमाइयों को पाक कर लो, इसमें झूठ को ना घुसाओ, इसमें धोखे को ना घुसाओ, इसमें हराम ना घुसाओ, हलाल लुकमे की फिक्र करो। जिस बदन में हलाल लुकमा जाता है रब्बे काबा की कसम वो बदन अल्लाह के हुक्म को बजा लाने के लिए आमादा हो जाता है। जिसमें हराम लुकमा जाता है वो हराम लुकमा कोई ना कोई गुनाह उस इंसान से करा ही देता है जब तक उसका असर बाकी रहता है। मुसलमानों अपनी तिजारतों को पाक करो, हलाल माल की तलाश में रहो। अल्लाह के नबी के हम दीवाने हैं, उसी पर जान की कुर्बानी दो, उसी पर माल की कुर्बानी दो। मेरे भाई आज दुनियावी तमाम मशरफों में बगैर सोचे समझे एक शादी का ही मामला आ जाए, कोई शादी करोड़ को पहुंच रही है, कोई 50 लाख को पहुंच रही है, कोई 20 लाख को पहुंच रही है, ये दुनियावी मामला है। और 50 लाख बेटी की निकाह में खर्च करने के बाद भी इस ये दामनगीर है, मैदान महशर होगा। उलमा यहां बैठे हैं, बच्ची के निकाह में 50 लाख खर्च करके भी अभी इसका दामन वहां पकड़ा जाएगा। इसने मीरास का हिस्सा नहीं दिया, अपनी बेटी को महरूम किया, अपनी बहन को महरूम किया। इतनी दौलत खर्च करने के बाद भी अभी अल्लाह के सामने हमारी तुम्हारी पकड़ होनी है। इसलिए उलमा किराम से पूछ पूछ कर कदम रखो, संभल संभल कर कदम रखो, अपनी जिंदगी का मुहासबा करो। हम दिन में क्या कर रहे हैं, रात में क्या कर रहे हैं, कहां से कमा रहे हैं, कहां से ला रहे हैं, हलाल भी है कि नहीं, हराम है कि नहीं, उसको समझ तो लो। ये तमाम चीजें सामने रखकर जिंदगी गुजारने की फिक्र करो। हमेशा दुनिया में नहीं रहना। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर जानदार को मौत का जायका चखना है। चखना है कि नहीं? कौन नहीं मरेगा हाथ उठाओ। हैं? कहां से लाए हो सर्टिफिकेट? मरना सबको है, ये कड़वा झूठ है। न कोई वली बचा है, न कोई नाफरमान बचा है, न कोई बेईमान बचा है, न कोई नबी बचा है। ये घूंट सबको भरना पड़ेगा। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर जानदार को मरना है। मरने से पहले अंधेरी कोठरी का सोच ले। आज एक कमरे में अगर मुझे तुझे बंद कर दिया जाए, सारे रोशनदानों को बंद कर दिया जाए, लाइटों को बुझा दिया जाए, अंधेरा कर दिया जाए, चारों तरफ उस कमरे के कोई ना हो, तू उस अकेले कमरे में नहीं रह सकता। कब्रिस्तान में जब कब्र में जाएगा कोई पड़ोसी नहीं होगा, कोई बात करने वाला नहीं होगा, कोई तेरे दिल जोई करने वाला नहीं होगा। ए मुसलमान, उस वक्त तू अपनी कब्र में क्या कर रहा होगा जरा सोच तो लिया कर। हमारे घरों में गर्मी को दूर करने के लिए आलात और मशीनें लगी हुई हैं, सर्दी को दूर करने के लिए तमाम तर सामान और जरूरतें के सामान मौजूद हैं, लेकिन उस कब्र के लिए अगर देखा जाए तो हम खाली हैं, हम गुनहगार हैं। ऐसी नाफरमानियां हमने की हैं कि कब्र का कोई सामान मेरे और आपके पास नहीं है। मेरे भाइयों, इस पुरफितन दौर में इन मदारिस का हमारे ऊपर यह एहसान है। कसम खा करके कहता हूं, अगर ये टोपी मेरे और आपके सर पे नजर आ रही है, ये इन मदारिस की देन है, ये इन उलमा की कुर्बानियों का नतीजा है। ये हमारे चेहरों पर 5% ही
सही, अगर नबी की सुन्नत मौजूद है, ये तो इन मदरसे वालों की बरकत है, उलमा की बरकत है, इन पढ़ाने वालों की बरकत है, इन पढ़ने वालों का नतीजा है कि जो हमारे चेहरों पर नबी की सुन्नतें कायम हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस दौलत उज़्मा की हम सबको कदरदानी की तौफीक नसीब फरमा दे। ये आपका महबूब मदरसा फैजुल इस्लाम यानी इस्लाम का फैज आपके यहाँ से निकल रहा है, चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, हाफिज हो रहे हैं, बच्चियां पढ़ रही हैं, इल्म दीन सीख रही हैं, हराम व हलाल को पहचान रही हैं, हराम व हलाल के मसाइल समझ रही हैं, शोहर के हुकूक समझ रही हैं, अपने माँ बाप की इताअत के हुकूक समझ रही हैं। ये कहाँ से आ रहा है? ये इन्हीं मदारिस की चार दीवारी से है। आपकी दौलत का मुतालबा मदरसे वाले करते हैं और आप इनायत फरमाते हैं। ये भी रब का निजाम है। अल्लाह ने मालदार दुनिया में बहुत बनाए हैं, ऐसे ऐसे मालदार दुनिया में हैं जिनको अपनी दौलतों का इल्म नहीं कि हमारे पास कितनी दौलत है। रात को सोचते सोचते जाते हैं, सुबह को उसी गफलत में उठ जाते हैं, सारा दिन गुजर जाता है, उन्हें ये ही नहीं खबर कि तू कितनी दौलत का मालिक है। मेरे भाई, अल्लाह ने दौलत दी है। कुरान में फरमाया है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। ईमान वाले की जान और माल को अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के बदले में ले लिया है। कासमी हज उम्रह टूर्स एंड ट्रेवल्स हज उम्रह और दीगर मुकद्दस मुकामात की जियारत का भरोसेमंद मरकज। हज उम्रह जाने के ख्वाहिशमंद हजरात स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर कॉल करें।